Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap, and you are here on Exambee where your preparation is going to get 50% faster. In this session, guys, we are going to specially focus on the descriptive part for our NPS examination. So, if you have not, first of all, gone through the official notification of NPS 2025, first of all, give it a good look so that you can understand that how a crucial component this one section can be, which is going to evaluate your written communication skills, everybody. As of now, the official handout is not basically released by them, so we will be having more clarity on that. But as of now, when we talk about descriptive English, some of the important topics which from which we can expect the questions to come is your essay writing, reading comprehension, pressy writing, or letter writing as well. So we are somewhere expecting that the test might going to consist of your essay writing and reading comprehension. Okay, so if anyone of you might be wondering that how to ace this section, so stick around because I am going to share a step by step approach to master it. Let's dive right in, everybody. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. सो वेरी फर्स्ट वन इज essay writing, guys. Again, I'll share the information once the official handout comes. As of now, we're expecting it to be कि we have to write a formal or structure essay जो शायद 250 to 300 words का हमें लिखना हो on the topics related to current events, economy related topics, social issues, or governance related things. Okay, and the second one might be your reading comprehension ka structure, I think a lot of you are already aware of. Generally it comes in the form of a passage and followed by 3, 4, or 5 questions. So but यहाँ पे we don't have to do for like the way we do in the MCQ form. यहाँ पे हमें उन सारे question का answer करना है based on the content of the passage which is given. तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा क्यों जाता है गाइज, बिकॉज ये वो पैरामीटर होता है जिससे हम जज करते हैं. हमारे एग्जामिनर जो है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, या कैसे हम इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं, ये चेक करने के लिए हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस. ओके, सो थोड़ा मैं ना इनको ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ यहाँ पे, like step by step process what is basically required from our end इन दोनों टॉपिक्स को एस करने के लिए. ओके, सो पहले देखो, मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में तो ज़रूर यहाँ बताऊँगी, बट वेरी फर्स्ट थिंग इज़ गाइज, आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सपैंड योर नॉलेज बेस, बिकॉज इफ़ वी विल बी हैविंग अ गुड कंटेंट, we know we will understand how to like write it, right? But हमारे पास अगर rich content ही नहीं रहेगा तो how are we going to write a simple essay, right? Even if वो 200 words का हो, 100 words का हो, we need some content for it, right? So always remember, you can always let's say rely on any good newspaper. You can focus on any magazines, bulletins जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ के साथ बिल्कुल अब्रेस्ट रहने के लिए. ठीक है, इसके अलावा द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स आर अगेन अ गुड न्यूज़पेपर्स जिसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, जिसके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं. Second point, or let's say the second step which will be required thing for your essay writing is understand the structure of an essay. ठीक है, कंटेंट अच्छी बात है, बट एक अच्छी कंटेंट एक अच्छी स्ट्रक्चर के बिना कुछ भी नहीं है. सो मास्टर दिस 3 part स्ट्रक्चर, डिवाइड योर एसे इनटू 3 parts. आप सबने स्कूल में, कॉलेज में कभी ना कहीं ऐसे ज़रूर लिखा है, राइट? सो वी ऑल नो कि हमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में अपने एसेस को डिवाइड करते हैं, राइट? वेरी बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अंदर जाऊँ तो क्या समझ में आता है आपको, दैट जनरली वी स्टार्ट आवर एसे विथ अ गुड हुक. इट मे बी अ कोट, इट मे बी अ फैक्ट, इट माइट बी अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन. ओके, तो बस हम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रीफली आवर टॉपिक इन दिस पैरा, और हमारी जो पर्सपेक्टिव होती है वो, ठीक है. देन व्हेन वी कम्स टू बॉडी, वी कैन राइट 2 to 3 पैरा एवरी वन, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट जो हमारे एग्जामिनर ने हमें डाला है ना. वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हम यहाँ दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, केस स्टडीज़ दे सकते हैं. सॉरी. एंड द लास्ट वन इज़ योर कंक्लूजन. वी नीड टू समराइज आवर पॉइंट्स. अब नई पॉइंट्स हमें नहीं डालनी है, ये जो इंट्रो और बॉडी में आपने डाला, वी नीड टू समराइज दैट पॉइंट एंड एंड इट विथ अ बैलेंस्ड ओपिनियन और अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, एवरीबडी. तो याद रखिएगा, कंक्लूजन ना थोड़ा सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए. दैट आई मीन दैट प्रोवाइड्स अ गुड मैसेज ऑन टू इट.
फिर आती है बात टाइम्ड राइटिंग की, क्योंकि देखो भाई टाइम तो हमारा फिक्स है. सो इफ यू आर एबल टू राइट अ गुड essay in 1 hour, that is of no use, right? So this is something which you need to focus on. The better, the more you practice, basically, guys, the better you are going to get the structuring your thoughts in a wise manner. Okay. नेक्स्ट वन इज़ जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जिसे हम एक्चुअली थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन आवर सिलेक्शन इन द एग्ज़ाम, and that is avoiding these mistakes like grammatical mistakes, unnecessary jargon, या टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, है ना. प्लीज़ स्टिक टू द लिमिट एवरीबडी. वर्ड लिमिट से स्टिक करना बहुत ज़रूरी होता है. प्रूफ रीड एट द एंड फॉर क्लैरिटी एंड कोहेरेंस. ठीक है, अगर ये छोटी छोटी पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखो ना, सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट अ बिगर गोल. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे RC के मास्टर का. तो ये तो पहला पॉइंट, आई होप द फर्स्ट स्लाइड वाज क्लियर टू एवरीवन. इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं जल्दी से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग है. सो रीडिंग मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन आवर स्पीड, बिकॉज टाइम चले जाने के बाद हम वो पूरा पैसेज पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट एवरीवन. सो यू नीड टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड. रीड रेगुलरली, प्रैक्टिस स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स. या आप हमारे वीडियोज़ में कई बार देखेंगे कि हमने स्किमिंग और स्कैनिंग टेक्निक्स पे भी काफ़ी बार बात की है. दिस एक्चुअली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर की आइडियाज़ क्विकली. पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स पढ़ के अपने मेन आइडियाज़ वहाँ से स्किम कर सकते हो. सेकेंड वन इज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन टाइप्स. इफ़ यू आर वेरी क्लियर कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो यू विल बी एबल टू डिलीवर वॉट योर एग्जामिनर हैज़ आस्क्ड ओवर देयर, राइट. सो अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे एग्जाम में, जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी हों. ओके. Third one is again a very important one. Not many, but yes, some of the students get swayed away. They put their opinion, outside knowledge into the answers. ये नहीं करना है students. All the answers must come directly from the passage. Avoid inserting your assumptions or your external knowledge. Okay. And last but not the least is प्रैक्टिस विद डाइवर्स पैसेजेस. क्योंकि एक जैसे पैसेज आपको आए ये ज़रूरी तो नहीं है ना. सो प्रैक्टिस विद पैसेजेस फ्रॉम डाइवर्स टॉपिक्स, जैसे कि साइंस हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल इशूज़. दिस विल एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर द वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स. आई मीन इफ़ यू हैव सीन IXMB's मॉक टेस्ट, यू विल बी एबल टू विटनेस दिस. क्योंकि सभी मॉक्स में जो पैसेज दिए गए हैं वो अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग एरिया से दिए गए हैं, सो दैट यू कैन हैव अ taste of all the areas from which your passage can be asked, everyone, right. और एक लास्ट में जनरल टिप देना चाहती हूँ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु बेसिकली थिंक कि मेरा इंग्लिश जो है ना वो हमेशा से कमज़ोर खड़ी रही है. सो ऐसा एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करूँ जिसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, मतलब इट्स नॉट इवन एन MCQ जिसको मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ. सो गाइज ये स्पेशल पार्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश इज़ अ वीक सब्जेक्ट ऑफ देयर्स. गाइज वी डोंट हैव टू बी प्रो, वी डोंट नीड अ प्रो लेवल नॉलेज ऑन टू दिस. ठीक है, बस हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा. द वेरी फर्स्ट थिंग, देखो बेबी स्टेप्स लो, यहाँ पे आराम से होगा. फर्स्ट वन इज़ योर इनहांस योर वोकैबुलरी. गाइज लर्न ओनली 5 वर्ड्स डेली. ठीक है, सिर्फ 5 वर्ड रोज़ का, एंड प्रैक्टिस देम इन अ सेंटेंस. आप दिन भर जो है ना आज वो 5 वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाओ. कोई समझे नहीं समझे, आपको समझ में आ रहा है, दैट्स इट. ओके. सो इनहांस योर वोकैबुलरी थ्रू दिस बेबी स्टेप्स. द सेकेंड वन इज पॉलिश योर ग्रामर. गाइज ब्रश अप योर बेसिक ग्रामर रूल्स. टेंस का देख लिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिया, थोड़े बहुत प्रीपोजिशंस देख लिए, ये सब आपने पढ़ा है. आई एम अगेन टेलिंग यू, आई हैव नॉट रिटन योर दैट and mug up the rules of your grammar. I'm just saying that polish your grammar. You just have to, बस जो धूल जम गई है ना उसे हटा दो. यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज. मतलब ये नहीं करने कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं किसी से, या फेसबुक के मैसेंजर पे वी आर जस्ट सेइंग हाई एंड हेलो टू आवर फ्रेंड. गाइज रिमेंबर दिस इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम, सो अवॉइड कैजुअल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज. ओके. और ये आप कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में, अपने किसी भी फॉर्मल सेटअप पे आप जैसे बात करते हो, यू जस्ट हैव टू डू द सेम थिंग इन योर राइटिंग पीस. Time management is the key, guys. So divide your time wisely. Spend a good amount of time in managing that.
क्योंकि अभी मैंने बोला 1 घंटे में आप बहुत अच्छा ऐसे लिख ले रहे हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी मच फ्रूटफुल फॉर आवर एग्जाम, राइट? एंड लास्ट वन, एवरीबॉडी, ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसलिए मैंने लास्ट ही रखा है इस सीक्वेंस में, एंड दैट इज़ योर मॉक टेस्ट एंड फीडबैक. अटेम्प्ट मॉक टेस्ट गाइज, डू नॉट गो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम और वहाँ पे आप अपना पहला ऐसे और पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख रहे हो और उसे कोई इवेलुएट भी ना करा हो. नो, प्लीज़ एटलीस्ट attempt 5 to 10 mock tests before appearing in the actual exam. Evaluate कीजिए अपने mentors से, peers से, constructive feedback लीजिए, वो आपको आपकी कमियों के ऊपर काम करने में आपको help करेगा, and that will accelerate your performance in a right direction, everybody. Okay? सो दैट्स इट. आई होप आज का सेशन थोड़े बहुत मिथ्स आपको बस्ट करने में हेल्प करेगा. एंड हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे उतनी काम की नहीं आएगी जब तक हम इसे एक्शन में ना कन्वर्ट करेगा. इज बिकॉज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर जी ने भी कहा है कि द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट नॉलेज बट एक्शन, एंड दिस एक्शन इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप this session will help you to understand. But एक बात याद रखिएगा, consistent practice, चीज़ों के साथ अपडेट रहना और अच्छे क्लैरिटी के साथ लिखना, ये आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे देगा. So guys and girls, if you found this video helpful, do not forget to like, share and subscribe. If you have not done yet, drop your questions in the comments below. I'll be happy to answer them. Thank you everyone. Bye bye. Take care.